I want to know about the very first moment when student studying abroad and struggling to live abroad comes to your mind very first time, and when you decided this is a great business opportunity. When I went to Nottingham back in 2010-11, for my exchange program, and I'm like, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ मेहनत तो हो गई, वही देंगे. I reach on a campus, like, okay, where do I stay there? What do you mean? I'm like, I'm on your campus. हमारे इंडिया में तो ये सिखाते हैं जिसके यहाँ जाके वहीं रहते हैं. So then I got my shock of my life. I've been told that okay, we can allow you 2 nights on our campus, but you need to look out. That's how I got my first experience of this problem, which I didn't know existed. हाईवे पे आप चलते हो, आप दिल्ली देहरादून अब मेरठ जा रहे हो, आपको दिखता है गूगल 48 लाख. अब आपने नाम नहीं सुना था उस यूनिवर्सिटी का, लेकिन आपको लगा हाँ ये यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरा. Family students should be aware why someone is going for education. And education में ना तो आपको UK, ऑस्ट्रेलिया, US बोल रही है या बिना पढ़ने आओगे हम आपको जॉब दिलाएंगे, और ना वो बोल रहे हैं कि आप हमारे आ रहे हो, पैसे लगा रहे हो, आपको हम सिटीजनशिप देंगे. तो एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट, वेयर शुड आई गो एंड रिसर्च? व्हाट विल बी माय टूल किट टू हैव इट रेडीमेड प्लेटर फॉर मी कि यार हाँ मेरे को बच्चे को इस कंट्री भेजने की ट्राई करता हूँ. हर बच्चा, हर फैमिली इट्स सो डिफरेंट, राइट. तो रेडीमेड जो ढूंढ रहा है वो फिर वो जिसको जो मिल रहा है वो रेडीमेड मिले. हाँ, इसी में फंस रहे हैं ना लोग. मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ के लिए एक कुंजी ढूंढ रहा हूँ. आप बता दो कि मैं कहाँ जाऊँ. आप खुद तो गए नहीं हो, आप खुद पढ़े नहीं हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आप बता दो. गलत नहीं है. तो वी बिल्ड दिस टूल कॉल SEBI, स्टडी अब्रॉड बॉडी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, राइट? एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू एडमिशन, राइट? देन व्हाई डिड वी बिल्ड अप? फॉर द सेम रीजन that either there is so much information which is biased, or people are lazy. I was lazy. I went to UK and didn't ask कि यार मैं रहूँगा कहाँ पे, और फिर मैं आज आके बोल रहा हूँ कि यार मेरे काउंसलर ने बताया था. मैंने पूछा ही नहीं भाई, उसने नहीं बताया, उसको भी नहीं पता था, पर मैंने तो नहीं पूछा. Hello everyone, welcome to another episode of Exchange Talk. Today we are going to discuss about how Indian students struggle about researching about studying in foreign countries, living in foreign countries, and when going out for the very first time researching a lot over a Google and other public domain available information. There is hell lot of information, so what is right and what is wrong? So to discuss more on this, we have our guest today, Mr. Saurabh Arora, who is a co-founder and CEO at University Living, also co-founded Unionist, and a great podcaster at the Living Pod. He also runs a company called Student Tenant. Welcome to our show, Mr. Saurabh. Nice Thank you. meeting to you. Yeah. ठीक है. Yeah, nice meeting to you. Likewise, So Manish. for the very first thing, I want to know about the very first moment when student studying abroad and struggling to live abroad comes to your mind very first time, and when you decided this is a great business opportunity. No, first of all, thank you. And all the best podcaster. It's not easy. I've been talking now. There are more podcasters than listeners, so I hope we get more listeners. But even in my case, I started podcast because I guess this is the best way to learn multidimensionally, right? So I will would love to learn from you. But coming back to my story, so when I went to Nottingham back in 2010-11, for my exchange program. So no one told me, I didn't ask, like a North Indian, Delhiite, Punjabi, वहाँ देख ले गए, तो वहाँ चले गए. I went on a January intake. So UK or most of the universities have 2 or 3 intakes. September intake, which is called fall, and then spring, and then there's a Jan intake, which is a spring or a fall, depending upon which country we are talking. So September and Jan. So I went on a Jan on an exchange program, and I'm like, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ मेहनत तो हो गई, वही देंगे, राइट? तो आई रीच ऑन अ वेरी कोल्ड डार्क टिपिकल UK इवनिंग, एंड आई रीच ऑन अ कैंपस, लाइक ओके वेयर डू आई स्टे देयर, व्हाट डू यू मीन? I'm on your campus. हमारे इंडिया में तो ये सिखाते हैं जिसके यहाँ जाके वहीं रहते हैं. So then I got my shock of my life, and then I've been told that okay, we can allow you 2 nights on our campus, but you need to look out. Unfortunately, January intake, mostly accommodation are full, right? So accommodation was full, even outside. Right. Then I stayed in a hotel for 1.5 months, right? And then I paid fortune. उस समय आप तो CEO, right? तो 82 pounds होता था to a rupee, which is a hell lot of money. Now it's 120, 118, right? And I come from a decent middle class family, so
मतलब गरीब नहीं हूँ, अमीर नहीं था, यू नो. So then I stayed in a hotel, and then that's how I got my first experience of this problem, which I didn't know exists, right? And because for the longest time we feel that यूनिवर्सिटी में accommodation होती है, इंडिया में भी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में से पढ़ा हूँ मैं, Right. वहाँ पे भी होती है, बट हमें पता है कि सबको नहीं मिलती, इट्स वेरी लिमिटेड, बट इफ़ यू अप्लाई यू गेट इट, So this is how I encountered this problem, and then I came back. I was a banker. I started my career with the Kotak Securities after my MBA, and then I was a banker in SDFC. Then while this was happening, so few of my friends, family, my cousin, my cousin Vaibhav, used to be into study abroad segment as a consultant, as a Okay. education partner or agent, right? Got it. So, and he also studied undergrad, postgrad from UK. So it was his idea, to be honest, but he conceived, I delivered, is what I say. And then and me and Vaibhav were always like two, होते नहीं वो हर फैमिली में कुछ साथ करेंगे या Right. बेस्ट ब्रदर्स, ब्रो, राइट. तो ये वाला इक्वेशन था. एंड देन व्हेन ही रीच आउट एंड आई एम लाइक हाँ यार बैंकिंग करते रहो, बट समहाउ मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज वही डीमेट अकाउंट, वही अकाउंट्स, वही कासा एंड वही इंश्योरेंस, चाहे वो वेल्थ मैनेजर बोल लो या Right. कुछ भी फैंसी नाम दे दो, है तो ये 4-5 चीज़ें ही, राइट. तो देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड देन आई जस्ट बाउंस ऑन इट. सो वन थिंग लेड टू अनदर, नाउ probably 14-15 years down the line, people say I'm a category creator. I accept that. I believe that I'm a category creator. And now we're one of the largest platform globally. I guess top 2 in India. Right. Globally in the top 3. And loving it, building it. Great. So जब आपने सोचा कि okay study it was your first hand problem as well, or maybe this was the first time experience कि यार ऐसा भी होता है बाहर जाके, and when you decided with your brother कि इस पे धंधा बना सकते हैं, so you would have certain sort of researches when जब पहला कस्टमर या पहला प्लेस या पहली लोकेशन या पहली कंट्री व्हेन यू वर डिसाइडिंग, आई थिंक यूके, ऑस्ट्रेलिया, वेयर एवर यू स्टार्टेड फर्स्ट, सो उसके बारे में व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च लाइक अ न्यू एंटरप्रेन्योर और अ न्यू पर्सन नोइंग जंपिंग इनटू अ एंटायरली न्यू बिजनेस. प्रॉब्लम सबके हैं बट हर प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन बना के जीत नहीं सकता है, तो व्हाट हाउ डू यू स्टार्टेड दैट? यार मैं फैंसी बात बता सकता हूँ, बट माई ट्विटर अकाउंट इज एक्सेलेंटर CEO, राइट. तो दैट्स सम इट अप, राइट. सो उस समय नहीं सोचा था स्टार्टअप है, बड़ा हो जाएगा, फंडिंग, वैल्यूएशन, व्हाट नॉट. रेलिवेंट प्रॉब्लम लगी, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, खुद फेस करी हुई है, मतलब यार बनाते हैं. आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, मतलब SME टाइप, नॉट SME फैक्ट्रीज होती है मेरठ में, इनटू फर्नीचर. सो माँ बाप को हमेशा काम करते हुए देखा है, एंड तो मेरा उल्टा था. मुझे था कि यार मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, ना तो फैमिली के साथ, मतलब मेरे को छुट्टी ही नहीं है, मेरी फ़ोटो ही नहीं है. कभी भी आई हैव एल्डर ब्रदर, सो मी, गौरव, माई ब्रदर, वी हैव नॉट गॉन टुगेदर एनीवेयर. देयर इज नो फोटो वेयर वी 4 आर टुगेदर. तो मुझे था कि यार मैं तो अपना CP में MBA करके अपना जॉब करूँगा, बैंकिंग करूँगा, सैटरडे संडे छुट्टी होनी चाहिए, राइट. बट देन आई गेस डेस्टिनी था या DNA है. तो बट जब पहली जॉब मेरी इंडिया बुल्स थी, बिफोर माई आफ्टर माई अंडरग्रेड इकोनॉमिक्स ऑनर्स. सो इंडिया बुल्स, देन इन्फोसिस, देन 2 साल का MBA, देन एक्सचेंज प्रोग्राम, देन कोटक, देन SDFC. तो ये 6-7 साल जब जॉब करा तो रियलाइज़ हुआ कि यार करो तो अच्छा करो, मज़ा आना चाहिए, राइट. तो कहीं ना कहीं बैंकिंग में मुझे था कि यार ये नहीं करना, राइट. तो उसके बाद जब ये हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, राइट, तो आई गो विद द फ्लो. यार आई एम नॉट द वेरी इंटेलिजेंट फाउंडर, I don't think too much. I act. Of course, I think, but I act, and then I'm like, अब तो कर दिया ना, then let's make it right. We take decisions, and when we take a decision, then we need to make it right. That's my philosophy. So हाँ, but उस टाइम पे ChatGPT नहीं होता था, and अच्छी बात नहीं होता था क्योंकि हमने एक्चुअली मेहनत करी. मुझे याद है वो एक एक्सेल बनाया हुआ है मैंने, वो मेरा लाइक पहला एक्सेल है, राइट, जहाँ पे मैंने UK में 100, आई गेस 146-137 सिटीज़, एंड देन हर सिटी में 3-4 यूनिवर्सिटी होती है, तो वो एक्सेल प्लॉट करना कि ओके मैं हॉरिजॉन्टली करूँ या हॉरिजॉन्टली करूँ कि वर्टिकली करूँ, एंड सिटी को यहाँ प्लॉट करूँ कि यूनिवर्सिटी को यहाँ प्लॉट करूँ. तो वो हाथ इतने गंदे करे ना, वो एक्सेल में अभी भी है, एंड दैट्स अ मास्टर एक्सेल फॉर द कंपनी.
you know. No Power BI dashboard can beat नहीं it. होता था, होता ही नहीं था ना, मुझे तो आता भी नहीं, होता था नहीं, मुझे आता भी नहीं BI, राइट. सो कमिंग बैक टू रिसर्च, तो रिसर्च वही था कि हाथ बहुत गंदे करे हैं, तो इस चक्कर में ना मसल पावर बन गई. तो UK इज बैक ऑफ माई माइंड. I can tell you, okay, this city में इतनी यूनिवर्सिटी, and then to top it up, I have walked down, and I'm super blessed and fortunate, and of course मेहनत बहुत करी है, but I have walked each and every lane in UK, in most of the cities, Great. so due to which muscle power, experience, and hence probably that is what worked for us, that we are not primary research या secondary research नहीं, दोनों करी, right, and हाथों से करी, वो कोई पैसे भी नहीं थे, समझ भी नहीं थी कि KPMG या 4 ऑडिट टीम लेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर कुछ बनाएंगे, बट रिसर्च में वेरी ऑन द ग्राउंड. एंड तो कुछ चीज़ें रिसर्च करी हमने, तो पता चला कि यार इट्स अ वेरी 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 बिग मार्केट. दैट 80 उस समय इंडिया से 2.5 लाख बच्चा जाता था बाहर, 2.5-3 lakhs. नाउ दैट नंबर इज 1.3. द लास्ट ईयर नंबर इज, बिकॉज वी ऑल्सो रन अ रिसर्च डेस्क, राइट, सो द लास्ट ईयर नंबर इज, this number from India will be anywhere from 5 to 7.5 lakhs. 7.75 lakh. I was researching 5 से yesterday. 7.5 2024 में 7.5 लाख. वो नंबर बाहर बोल देता, वो सही है. आई चैलेंज देम. प्लस माइनस 1.5 मैं लाख. इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद रिसर्च डेस्क करता हूँ, अगर मुझे चैलेंज करता तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरे पास सही नंबर नहीं है. हाँ, बट व्हेन MEA यूज दैट 1.3 million बेस्ड आउट ऑफ रिसर्च डेस्क, मुझे लगता है ठीक ही कर रहे हैं, राइट. बट आई नो 1.3 million इज नॉट द राइट नंबर, इट्स ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग नंबर. तो उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक्सचेंज प्रोग्राम सब एडेड है, राइट. 5 से 7.5 लाख बच्चे इंडिया से जाता है. उसमें से अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो उस समय मेरे ख्याल से 3 मिलियन स्टूडेंट इंटरनेशनली होते थे, वो 7 मिलियन है. बाई 2030 गोना बी 10 million, राइट. सो दिस इज इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट दे आर 80 million स्टूडेंट्स हु गेट एनरोल्ड एवरी ईयर फॉर द हायर एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब. उस 85 million से 35 million आर टारगेट ऑडियंस, जिसमें इंडिया टू द वर्ल्ड, and word to the world, and then they are local mobile students, that is 35 million. So that's the market we're going after, right, and we do few thousands. Imagine, अगर मुझे अगले 30 साल भी काम करना पड़ा तो भी macros नहीं change हो रहा, right? So probably this is the research we have done, and this is the hook thesis playbook we have given to us, and that's where we are going in. Right. And thank you. And but when you rolled out the first city successfully, maybe there are a lot of challenges. You have yourself mentioned it about के you have walked lanes and lanes, right? ये बहुत बात की बात है. But coming back to challenges, मुझे याद है मेरी पहली बुकिंग ब्रिस्टल की थी, 189 pounds a week. तो सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि यार लोग 190 pound उस समय, let's say 15,000 रुपये पर वीक देंगे. That means 60,000. That means almost 7.5 lakh, right? Which means almost 40 to 50% of the overall fees they are paying for their studies. People will pay that much. तो मुझे खुद ही कन्विंस नहीं था. मैंने कहा तो लाइफस्टाइल बिजनेस है, करके देखते हैं, राइट. बट जितने ने रिसर्च करी, रियलाइज किया कि ओनली 1 out of 6 स्टूडेंट गेट यूनिवर्सिटी हॉल्स. ओनली 16% यूनिवर्सिटी हॉल्स मिलता है, राइट, अक्रॉस द ग्लोब, कहीं भी. अब आप इंडिया भी देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस कितने लोग करते हैं. Where did you study? I was doing chartered accountancy. It's all open. You just have to go. तो कैंपस में रहे आपने, सारी स्ट्रगल देखी कि accommodation मिलती है. I just did my 12th and then sat at home and studied and. क्यों ऐसा क्यों किया? CA में यही ऑप्शन है ना. आप हाँ. CA के साथ. I did my graduation. I did my BCom honors from Delhi University, but it was School of Open Learning. Yeah. Open Learning, right. Just went there for giving the examination, because CA and a regular college you cannot do both as per the compliance as well. हाँ, पहले भी होता है. हाँ, पहले भी. मैं 2010 से 15 की बात कर रहा हूँ. दोनों फुल टाइम नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, क्योंकि you have to do articleship as well. तो कॉलेज और वो कैसे करोगे? तो यू आर क्लियर कि आपको आपको CA करनी है. हाँ. किस अंकल ने बोला था या आंटी ने बोला था, किस भैया को देखा? हाँ, my cousin brother was a CA and all other were studying. So मैंने भी रिसर्च थोड़ा बहुत करा था 11th में, only on Google itself. तो मैं बहुत कॉस्ट बेनिफिट वो करता था उस समय कि यार MBA में ये फीस है, कॉलेज करूँगा 3 साल, फिर 5 साल, 2 साल MBA. हाँ, राइट प्रॉपर. CA में क्या है, हाँ, परसेंटेज इतना है, ठीक है, लेकिन देखते हैं. पहले 2 बार सिर्फ दिया था, मतलब देने के लिए दिया था कि फेल हो गए तो बाहर आ जाएंगे, नहीं हो. बट लकीली फॉर्चुनेटली आई डिड माई होल CA इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो आई फर्स्ट अटेम्प्ट को 2 बार दिया तो नहीं, पहले 2 में सिर्फ देने के लिए जो भी बोले दिया तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. मैंने ये करा
कि देना है, ट्राई करना है, तो एंट्रेंस क्लियर हो गया, ठीक है, अभी भी नहीं है लॉन्ग थर्ड टर्म, अटेम्प्ट है ना, हाँ, फिर इंटरमीडिएट दे टेक्निकल दिया, थर्ड अटेम्प्ट ना, हाँ, टेक्निकल थर्ड अटेम्प्ट है ना। टेक्निकली पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट ना। 31 मार्च को मेरी 12th खत्म हुई, अच्छा 19 जून को मैंने एग्जाम दिया, 19 जुलाई को पास हुआ, फिर इंटरमीडिएट एग्जाम आ गया, इंटर वाला, राइट ये भी दे लेते कि कॉलेज और इसकी पढ़ाई सेम सेम, राइट। तो दे दिए, पास हुए। जब आप इंटर भी क्लियर कर ले तो आपको फिर फाइनल फोकस हो जाते हो कि अब तो आधा सीए हो ही गया, अब तो फाइनल देना, वही नहीं हो पाता। हाँ, वही नहीं हो कौन पाता। से वो अटेम्प्ट, किसने अटेम्प्ट वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ। तो आई पास इन May तो 15। रट्टा फिंगर अच्छा है कि कॉन्सेप्ट अच्छे हैं? आई एम आस्किंग दोनों। सो अगेन यू नो आई एम नॉट अ करियर काउंसलर, यू नो वो अलग बात है कि मैं करियर काउंसलिंग औरों से बहुत अच्छी कर सकता हूँ मैं, बट सर्टिफाइड नहीं हूँ मैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई माय क्यूरियस पेरेंट एंड अ एल्डर ब्रदर समवन इज कमिंग कि यार होता तो ये है कि किसी भैया या किसी पापा को बोल दिया, या एक यू नो कि यार डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, क्यों बना नहीं पता, यू नो, बट पापा ने बोल दिया या किसी से सुन लिया, देख लिया, राइट, और फिर हम पैशन और पागल की तरह चेज कर लेते हैं। आपके भी केस में ऐसी था? मेरे केस में मिक्स था, मेरे को पैसे कमाने थे, सबसे ज़्यादा सैलरी पास होते ही कौन से प्रोफेशन में, सीए में, उस समय का एक ब्रैकेट था, जो वडेवर ब्रैकेट इन 2010 बस 1.5 लाख 2008, हाँ, उतना भी नहीं था। 2010 में जो हम एवरेज सुनते थे वही 70-75 हज़ार, 9-10 लाख इज स्टार्टिंग सैलरी, जो शायद कॉलेज करते ही नहीं मिलती आपको फिर एमबीए करना पड़ता, तो उतना टाइम पेशेंस जिसके पास है वो करेगा। लगता नहीं आपको कि यार इतना 1% लोग का ही होता है ना पास आउट? हाँ, तो 1% लोग, और कितने लोग देते हैं? वो हमारे टाइम पे जो मेरा मतलब, हम जब अपने टाइम पे डेटा निकालते थे, 40,000 फाइनल स्टूडेंट्स देते थे, तो 1200 पास होते थे, तो 1200 कितना हो 3%। गया? 3% हो गया, 3% हो गया, हाँ। तो 3% पास करने में अगर 70-75 हज़ार रुपये जॉब तो कम नहीं है, बिकॉज यू आर कमिंग ऑन कॉस्ट स्टार्टिंग है ना, देन यू विल, हाँ। पर अगर उससे हम आई और IIM से बात, IIT से करें, हाँ, वो तो 1% का होता है, 1.5 लाख देते हैं, 15,000 सीट्स है, मैं सही सही है ना। तो अगर मैं CA और IIT भी करूँ, यू नो, तो कंपैरिजन तो, क्योंकि IIT का एवरेज 18 से 24 लाख एवरेज, आई डोंट नो, अभी तो कम हुआ है, बट राइट, तो बिकॉज वो वाला दैट वाज सेकंड ऑप्शन, बिकॉज साइंस नहीं ली हुई थी, राइट, यही मैं बोलना वाला। बट कम नहीं है यार, ये हम 40,000 लोगों में 1200 में आ रहे हैं, यू नो, हमें 70-75 मिल रहा है, विच इज नॉट लेस। नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ बहुत जनरल एवरेज बोल रहा हूँ, मिलने को तो वहाँ पे 24-24 लाख का भी कैंपस तो हायरिंग कैसे होती होता है, है? 32 लाख। जैसे 1200 में आप थे, क्या रैंकिंग थी आपकी? रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं थी, मतलब पहले 100 में नहीं थी? नहीं होती थी, तो याद होती, हाँ हाँ, याद है ना, नहीं, मतलब कह खुल के रहा हूँ, बताते हैं हाँ ये सब, है ना, बट फर्क पड़ता है रैंकिंग और उसके बेसिस पे भी। हाँ, देखो, मिलती बिग होगा। फोर्स का प्रायोरिटी होती है, दे पिक द रैंक होल्डर्स ओनली, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रैंक होल्डर आएगी अगर आपने दोनों ग्रुप एक तो साथ ऐसे दिए। क्या हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके नहीं, फर्स्ट सीए अटेम्प्ट कर में दिया? अब जैसे आप हर प्रोफेशन का एक वो होता है, जैसे आईआईटी में होता है कि आप कितने साल आपने ड्रॉप लिया या कितने साल में किया, तो या उससे क्या एमबीए में। फर्क पड़ता है उससे? मतलब ये देखा जाता है कि उसकी कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग ऐसा कुछ पावर नहीं, स्ट्रांग है, ऐसा कि कुछ इशू नहीं, ज़्यादा है, कि फोकस ज़्यादा है? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो शायद 6 अटेम्प्ट वाले सीए बहुत स्मार्ट देखे, हाँ, वो क्योंकि तो होते ही उनका, है, बट नहीं, मैं हाँ, कंपनी की तरफ से कह रहा हूँ। कंपनी को ये होता है, आई डोंट नो, कंपनी के एंगल से मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन लाइक बिग फोर इज अ क्राइटेरिया, बोथ अटेम्प्ट एट सेम टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रैंक होल्डर, तो दे आर ऑलरेडी फिल्टर्ड तो आउट। टॉप 4 को क्या डिफरेंस होता है प्राइस पॉइंट में? होता है लाइक एट व्हेन वी वर सिटिंग इन कैंपस, तो बिग फोर was giving in 2015 I am talking about, so they were giving something around on an average a bare minimum of 16 to 24 lakh of opening packages, तो डबल and का? Infosys, and they used to give 9-10 lakh at that time to CAs because they have a BA kind of a roles, but फिर there are a lot of other companies, तो प्लस में then there are some companies who send you in like Congo like cities and all, तो वो 80-90 लाख भी वो CTC तो फिर होता वो है, तो सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी है ना, वापस राइट नहीं राइट, आया तो नहीं आया, एग्जैक्टली तंजानिया एंड ऑल दोस मर्चेंडाइज, वो तो मर्चेंट सेलिंग वाला टाइप। राइट। ठीक है, कमिंग बैक टू यू नो, मैं भूल जाता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, बट आई वुड लाइक टू गो टू एंगेज। ठीक है, तो फिर CA कर लिया, ठीक है, एंड देन कमिंग बैक टू इट, क्या क्वेश्चन क्या था? आप भी क्वेश्चन हम चल रहे थे यूके, कोई एक कंट्री, आपने ब्रिस्टल से स्टार्ट करा, देन वी स्टार्टेड एट सम पॉइंट, यू स्टार्टेड एक्सपेंडिंग टू अदर सिटीज, अदर ज्योग्राफीज। तो यार सी, बिकॉज मैं यूके में एक्सचेंज करने गया था, यू नो, देन यू नो माय ब्रदर इन लॉ, मतलब माय ब्रदर आल्सो वाज इनटू यूके, लाइक, तो यूके का एक्सपोजर ज़्यादा था, राइट, बट देन यू नो, सो व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, इन 2011 until 2014 I built this Unilogis, wherein we raised around 13-14 million later on when I moved out, you know, at crazy valuation of 150 million, 100,000 crore, you know, Sunicon थे हम उस टाइम पे 13-14 में, and then after that I left, you know, I was kicked out, you know, I don't know if you have read about, I was kicked out, but
तो वो यूके कर रहे थे, राइट, एंड धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया बिल्डअप कर रहे थे, एंड देन आइलैंड कर रहे थे. तो ऐसे नहीं था कि वी वर वेरी क्लियर कि पहले एक कंट्री को फाड़ेंगे, फिर दूसरी कंट्री को फाड़ेंगे, या एक सिटी को फाड़ेंगे. सो वी वर फिगरिंग आउट, राइट, एंड बट इन 2015 आई स्टार्टेड अगेन, यूनिवर्सिटी लिविंग, और द यूनिवर्सिटी लिविंग, नाउ इज द यूनिवर्सिटीलिविंग.com. सो व्हेन वी स्टार्टेड अगेन, तो आई एम लाइक क्या यूके तो पहले किया ही है और कम्पीट नहीं करना, तो आई लाइक कि ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करता हूँ. तो आई स्टार्टेड ऑस्ट्रेलिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया में भी देयर आर ओनली 6 cities, 8 मेन सिटीज, 8 to 10 cities, एंड उसमें से 6 सिटी मेन है, राइट. तो ऑस्ट्रेलिया में मूव हो गए, मैं मतलब फोकस करने लगा था. एंड बट अगेन कमिंग बैक टू मेन थिंग, राइट. तो मेरे बिजनेस में ना ऐसा नहीं था, क्योंकि मार्केट प्लेस बनाते हैं, राइट. पता भी नहीं मार्केट प्लेस बनाते हैं यार. प्रॉब्लम है, बच्चा बाहर जाता है, एकोमोडेशन नहीं मिलता, डिस्कवरी नहीं होती भी है तो जो दिखता है वो मिलता नहीं, राइट. और जो मिलता है उसमें भी इट्स नॉट स्ट्रीम लाइन, राइट. कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग, documentation, booking systems, so it's like a listing platform. So listing to we build marketplace to now we are building managed marketplace, and now of course we are building global distribution system for student housing. Before we'll see whether university living, university off living बनता है, या फिर student read बनता है. So that's a vision for my 30 years, but for coming back to 14 years back, तो एक सिटी मतलब मार्केट प्लेस का है ना, डिमांड सप्लाई. सो इट वाज वेरी क्लियर कि यार ज़्यादा सप्लाई होगी ज़्यादा डिमांड आएगी, जहाँ डिमांड आएगी वहाँ सप्लाई बना. Right. दैट वाज द वे वी आर बिल्डिंग अप. Or like after Canada, US, UK, Australia is among the top 4 most preferred destination from a point of view of Indian students, right? और लेकिन ऑस्ट्रेलिया मतलब geography is a very as compared to India or other countries, that's a very geographically very small country, right? So वहाँ पे this your density file से कि इतने ही seats हैं, but the residents like I was listening to something, right, कि like Perth और Sydney kind of a cities, वहाँ पे universities हैं, admissions हो जाते हैं, फिर रहने की जगहें कहाँ हैं. तो those like any example, any particular city in Australia जहाँ पे मतलब there are good universities, people are going there, traveling there, but there is a highest challenge in kind of finding a good accommodation. It's expensive as yes well. everywhere. अगर मैं यूके की बात करता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई. लंदन में देयर आर 40 such universities and colleges. Hence if UK में there are 3 million domestic and international students, around 600,000, 6 से 7 लाख इंटरनेशनल है, उसमें से मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स हो गए, राइट. एंड अराउंड 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट है, 2.5 से 3 लाख, राइट. सो that's why even London is my biggest market, one of the strong market, micro market I would say. And as a marketplace, जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई क्रिएट करो, या जहाँ सप्लाई होगी वहाँ डिमांड क्रिएट करो, राइट. सो यूके में लंदन हो गया, देन फॉलोड बाय मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रिस्टल, एंड देन ऑफ कोर्स ये ना ऑल्सो लाइक डिमांड सप्लाई हमेशा मूव होते रहता है. डिमांड बढ़ा तो सप्लाई आने में टाइम लगता है, और जहाँ सप्लाई बना वहाँ डिमांड ऑल करने में लगता है. तो एवरी ईयर इट्स अ वेरी डायनेमिक मार्केट, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर पीपल हु प्रॉब्ली देयर मेनी हु ट्राइड बिल्ड अप यूनिवर्सिटी लिविंग, विद इन यूनिवर्सिटी लिविंग, और बिकॉज लगता है कि मार्केट प्लेस आसान है, राइट. आसान था, अभी भी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बट देयर आर चैलेंजेस, राइट. देखो मुझे बहुत लोगों ने, इन्वेस्टर ने बहुत मुझे ज्ञान दिया है, और बहुत अच्छा ज्ञान दिया सबने, बट बोलना आसान है, और सबने हमने सुना ना कि यार पहले अगर आप कोई भी बना तो नोएडा में क्रैक कर लो, और नोएडा में सेक्टर 18 में कर लो, राइट. सेक्टर 18 में इकोनॉमिक स्केल कर लो, फिर नोएडा में कर लो, फिर आप एनसीआर में कर लो, राइट. सो दिस इज वन वे, राइट. बट अगर नोएडा में कोविड लग गया, खाली नोएडा में लग गया, या नोएडा में कर्फ्यू लग गया, कुछ भी हो गया, दंगे हो गए, आपका पूरा थीसिस थैंक यू हो जाएगा, राइट. अभी मैं बोल सकता हूँ हाइंडसाइट दैट यूके किया, फिर ऑस्ट्रेलिया किया, फिर आयरलैंड किया, 5 साल इन 3 कंट्रियों में अंदर जाते गए. देन वी नो कि इट्स अ सिक्लिकल मार्केट, अब जैसे जो यूएस में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया कोविड में 2 साल बंद था, राइट. तो अगर वही होता ना ऑल इन, आई एम नॉट ऑल इन गाय, राइट. मुझे नंबर 1 नहीं बनना, मुझे फास्टेस्ट नहीं बनना, आई वॉन्ट टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड आई वॉन्ट टू बी have a sustainable legacy business, wherein any stakeholder who's working with us, for us, with us, who have invested in us, who are looking to work with us, it has to be sustainable, क्योंकि कंपनी खोलना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद मेंटेन करना एक और चीज़ है, और उसके बाद फिर इवॉल्व होना, तो इट्स नॉट. तो पहले मैं बोलता था यार स्टार्ट सबको सबको स्टार्ट करना चाहिए. मैं बोलता हूँ यार एक तो स्टार्टअप सबके लिए नहीं है,
एंड एवरी नॉट अ फाउंडर, राइट. और अगर आप बन गए, यू नो, तो फिर इवॉल्व नहीं हो रहे हो आप, यू नो, और अपने थीसिस को हर 3 महीने में रिडंडेंट नहीं कर रहे हो, राइट, देन नहीं कर पाओगे सस्टेन. और अब तो विद AI नॉट इवन कमिंग, AI इज अराउंड. Right. पहले 150 साल में कंपनी बनती थी और रहती थी, यू नो, नेस्ले और Right. व्हाट इज दैट कंपनी, गैजेट नहीं, Gillette. सॉरी, थैंक यू. Right. यू नो 150 साल लगते थे, यू नो. फिर 70 साल फोर्ड चल जाती थी. एप्पल ये सब अब 30 साल 40 साल, राइट. अब तो 10 साल हो गए, Yes. अब तो 3 साल और हो अब गए, तो बहुत छोटा और स्पैन हो 3 गया. साल हो गए. Right. तो अच्छी बात यह है कि इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट. Right. मुश्किल है, इट्स अ वेरी रियली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड आइदर यू रेज सो मच ऑफ फंड एंड उसके अपने pros एक and जर्नी cons है है, उसके, या एक फिर journey आप है, बूटस्ट्रैप बनाओ, राइट. एंड बूटस्ट्रैप में फिर आपको अब फिर वो बैलेंस लाइफ, यू नो, वर्क bootstrap के इंटीग्रेशन. अपने एक साइड में कहते हो, then you have to ready for that cockroach kind of a work, right? And it's not और अपने को bad. समझना जरूरी है, हाँ. यू नो. दिक्कत क्या होती है, मीडिया फंडिंग को ग्लैमराइज करती है. और अनफॉर्चुनेटली है वो सिस्टम जहाँ पे जैसे आप फंड रेज करते हो, ओके यू अराइव्ड, यू आर स्मार्टर देन अदर्स, इसलिए आप रैंक CEO या आप IT में हो गए, तो अब तो भाई आपने, Right. you know, and then due to which everyone chasing funding, and I have also been guilty, and we have been, you know, we've been supported. We have the investors, you know, they are very very patient, very very, you know, like they're very supportive. That also because we are compliant, also we are profitable right from day one, also because our macros are intact, and I'm very communicative. Right. Agar if shit happens, I tell shit is happening, but if things are working well, we are sharing that. So coming back to it, you know, research, then coming back to it, why UK, and then why one city, you know, and then why we are built up, how we are built up. So this is the story, you know. And again, most of the question I don't have answer to, figuring it out, right. But being very honest to my team, my investors, my founders, to myself. Right. People are not honest to themselves, you know, and I've been also been guilty of तेज करना है, फंड रेज करना है, बड़ा करना है, एंड वो गलत नहीं है, यू नो, बिकॉज आई हैव बीन ऑल्सो मिसिंग फ्यू टाइम्स, यू नो. अनफॉर्चुनेटली अगर मैं उस समय यूनिलॉजर से, यू नो, हमारा आई वॉज नॉट किक्ड आउट, अभी तक तो प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी NSE IPO कर चुका होता, इवन NASDAQ IPO कर चुका होता, बट ठीक है, यू नो, मेरी जर्नी है, मेरी लर्निंग है. बट गुड थिंग इज, am I enjoying the process? Yes. Am I evolving? Yes. Am I making money? Decently okay. And am I solving a problem which is real? You know, so probably these are few things, you know, which is, you know, Now, from keeping us going. Sorry. Now, from a student point of view and from a parent of a student who is at class 11th or 12th or maybe at 10th, they want to know, everyone has a dream or ambition, और एक वो है कि यार बच्चे को बाहर भेजना है. Now, बाहर is a generic word. फॉरेन कंट्री, फॉरेन तो कोलालमपुर में भी पढ़ रहे हो आप, जर्मनी में भी जा रहे हैं, बहुत जर्मनी इज़ नाउ पिकिंग इट अप, बट देयर आर पीपल हु आर स्टडिंग इन यूक्रेन, रशिया, बहुत सारी कंट्री है. अब एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट, हाउ विल आई डिसाइड कि यार whatever studies I want to do, whether it is management, MBA or MBBS or whatever stream I want to go in, which country, based on I will have a deep pocket or what kind of a pocket I have, है ना, कि एक there is a cost और वो मेरे फैमिली और मेरा बजट whatever it is, बट किस कंट्री में मैं जाऊँ. और वहाँ एक कंट्री में भी बहुत सारी सिटीज़, अगर मान लो कोई श्रीलंका से इंडिया आके पढ़ना चाहता है, तो नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी वाइड कंट्री, बहुत सारी सिटीज़, बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे और बहुत नहीं अच्छे कॉलेजेस. अब मैं जा तो रहा हूँ, फॉरेन में पढ़ रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों को पता है कि हाँ इनका बेटा लंदन में है. अब हो सकता है वो लंदन का वैसा स्कूल हो जो बिल्कुल हाँ ख़त्म, या तो हो सकता है वो ऐसी कंट्री में जिसका नाम किसी ने सुना बट वो वहाँ का बहुत टॉप है, लेकिन हमको अवेयरनेस नहीं थी या उनकी ब्रांडिंग वैसे नहीं हुई हुई. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड ब्रांडिंग ऑल्सो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एडमिशंस, बट वो शायद उतने मेरे ख्याल से उनका नहीं है. मैं आई वॉज लिसनिंग समवेयर आउट, राइट. तो एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट, वट वेयर शुड आई गो एंड रिसर्च, वट विल बी माई टूल किट टू हैव इट रेडीमेड प्लेटर फॉर मी कि यार हाँ मेरे को बच्चे को इस कंट्री भेजने की ट्राई करता हूँ. एक तो ये क्वेश्चन ही गलत है यार कि रेडीमेड ट्रैकर दे दो. हर बच्चा, हर फैमिली इट्स सो डिफरेंट, राइट. यू नो. तो रेडीमेड जो ढूंढ रहा है वो फिर वो जिसको जो मिल रहा है वो रेडीमेड मिले. हाँ, इसी में फंस रहे हैं ना लोग. मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ के लिए एक कुंजी ढूंढ रहा हूँ. आप बता दो कि मैं कहाँ जाऊँ. आप खुद तो गए नहीं हो, आप खुद पढ़े नहीं हो, यू नो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आप बता दो. गलत नहीं है, और नॉट दैट जिसने क्रिकेट नहीं खेला वो कोच नहीं बन सकता, बन सकता है, इनफैक्ट अच्छा कोच बन सकता है. बट अगर उस कोच ने अटेम्प्ट किया हो
कि वो पढ़ने जाना चाहता था या पढ़ के आया है, या फिर he or she is in the part of the industry which for at least 5, 10, 15 years, Right. and they are certified and they are ethical, moral, which company they are working, वो एक e-commerce की तरह स्टडी अब्रॉड को बना रही है कि वो एक आराम से मिलके करियर आउटकम ड्रिवन. तो दीज आर फ्यू वे फॉर मी टू शॉर्टेज एन एजुकेशन पार्टनर. एंड एजुकेशन पार्टनर का जाना चाहिए, नॉट नेसेसरी, राइट. You have so we built this tool called SEBI, Study Abroad Buddy for International Education, right? And I don't want to run to admission, right? Then why did we build up? For the same reason that either there's so much information which is biased, or people are lazy. You know, student. I was lazy. I went to UK and then asked कि यार मैं रहूँगा कहाँ पे, और फिर मैं आज आके बोल रहा हूँ कि यार मेरे काउंसलर ने बताया था. मैंने पूछा ही नहीं भाई, उसने नहीं बताया, उसको भी नहीं पता था, पर मैंने तो नहीं पूछा. पैसा मेरा था, लाइफ मेरी थी, मैं कैसे नहीं हो सकता, पूछ सकता हूँ, राइट. अब तो देयर चैट जीपीटी, देयर कस्टम जीपीटी, लाइक यूनिवर्सिटी लिविंग का एक कस्टम जीपीटी है स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए. वी बिल्ड SABI, यू नो, एज आई मेंशन, स्टडी अब्रॉड फॉर बडी. तो वी बिल्ड अराउंड 18 मंथ्स बिफोर, एंड व्हेन इट वाज लाइक, यू नो, बिकॉज मैंने AI में ISB से लीडरशिप प्रोग्राम किया था. आई वाज इचिंग कि यार कुछ तो बनाना है, बिकॉज आई रियलाइज कि यार AI इज नॉट फ्यूचर, हो रहा है, हो चुका है, राइट. इनफैक्ट सब कर रहे हैं, कर भी रहे थे. Right. मुझे याद है 2015-16 में जब मैं पिच करता था, AI/ML बोलता था कि किसी ने बोला था यार ये बोलना है. 2020 में रियलाइज किया वी आर सेटिंग ऑन सो मच ऑफ डेटा, एंड द डेटा इज मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज AI. इट्स ऑल प्रेडिक्टिव, राइट. प्रेडिक्शन ही तो है, राइट. सो मोस्ट ऑफ बीन यूजिंग AI and ML, बट नाउ वी रियलाइज कि अच्छा, यू नो, कैप्चा, डेटा कैप्चर इज सो इम्पॉर्टेंट, you know, analysis is so important, and that give you future or prediction, right. But coming back to it, so that's how we started SEBI, and we build up because we realized that we have a superpower, you know, because I'm not doing admission. मेरा कोई, मैं पैसा नहीं कमा रहा उससे, तो आई हैव नो बायस. अच्छा, मैं खाली एक स्टेट ही नहीं कर रहा कि यार UK चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, US. तो मैं एक सिटी नहीं कर रहा, मेरा पूरा डेस्टिनेशन मैंने कवर कर लिया. मैं एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ. आई एम नॉट ओनली डूइंग इंडियन स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग South Asian, Malaysian, Chinese, you know, local domestic student, Middle East, US. So we have data points, and we not only doing postgrad, we're doing undergrad, right? So because we are setting up so much of data, and then we leveraging AI, right? And मेरा vested interest, मतलब वो मेरा funnel नहीं है, उसमें पैसा नहीं कमा रहा, right? वो मेरा funnel है कि यार अगर आप अच्छी जगह जाओगे, you know, और आप रिसर्च करके जाओगे, तो आप एजुकेशन पार्टनर के पास भी टाइम कम लगाओगे और सही क्वेश्चन पूछोगे, वो सही आंसर देंगे, तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे अच्छी जगह पढ़ने के, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लेके गए हो. ड्यू टू विच, यू नो, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सही फिटमेंट है. यूनिवर्सिटीज़ में भी एक प्रॉब्लम होती है कि लोग आते हैं बीच में छोड़ जाते हैं, या फिर वो अपना, यू नो, वो हम बात कर सकते हैं, यू नो. सो दिस इज़ वेयर वी आर क्रिएटिंग इको सिस्टम, यू नो, जिसको मैं बोलता हूँ कि यार SEBI एसोसिएशन बनाते हैं. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब बड़ी हुई थी, वो खाली टाटा से या HDFC से नहीं हुई थी. दे ऑल कम टुगेदर, एंड म्यूचुअल फंड सही है, एंड हेंस SIPs बढ़े. तो सिमिलरली स्टडी अबाउट सही है, एंड कैन वी ऑल कम टुगेदर, यू नो. इट वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑन एडमिशन लेवल, राइट. दैट्स व्हाई देयर इज नो वन बिग ब्रांड, देयर आर फ्यू बट नॉट वन, राइट. बट हाउसिंग वी आर कंसोलिडेटेड, एंड बिकॉज, यू नो, आई बिलीव इन कोलैबोरेशन, यू नो, hence we build up this, you know, this ecosystem wherein right from aspiration to employability, you know, how we're able to get everyone together. I am a podcaster, right? So I also have access to, let's say, Cadila, Oxilo, Avance, Education Loan. I work with all the education partners in India and globally. I work with all the universities, you know, and university come to us because we create content which is not biased, you know, information, you know, informative, due to which even embassies, Education USA, Education Ireland, study Australia, study New Zealand, we all have access and we're working with them, right? Because we're creating a content which is not biased, you know, and this is what needed in industry. Long route, you know, लोग मुझे बोलते हैं तो क्यों बना रहे सब, ना तो उससे पैसे कमा रहे, you know, but I'm like यार अगर मैं पाई नहीं बढ़ा हुआ, you know, और मैं बोलूँगा कि यार 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स अब 5-7 लाख हो गए और मैं बढ़ता रहूँगा, नहीं. इट्स अ टाइम वेयर वी ऑल कम टुगेदर, एंड नॉट ओनली फॉर बिजनेस साइड. स्टूडेंट्स को वैल्यू मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट कहीं पे हम पैनल में बुलाते हैं, लोग कहते हैं यार यू आर ए स्टूडेंट फर्स्ट कंपनी. मुझे हंसी आती है, मैंने कहा यार स्टूडेंट के लिए कंपनी बनाई, स्टूडेंट से मैं पैसे कमा रहा हूँ, और मुझे आप बोल रहे मैं स्टूडेंट फर्स्ट कंपनी हूँ, ये तो सबको होना चाहिए. गिवन है ना, आपका आप सही हो, राइट. अगर आपका क्लाइंट नहीं ग्रो हो रहा, आप उनको टैक्स ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, आप उनको एडवाइस नहीं दे रहे हो टू, यू नो, टू लीगली सेव मनी एंड इन्वेस्ट,
आप 1 साल 2 साल 3 साल तो पैसे कमा लोगे, चौथे साल 5 साल बाद वैसे भी हटा सकते हो। तो 5 साल को कहेगा भाई मेरा CA उतने ही बताता है जितना मैं पूछता हूँ, या उसको उतना ही पता है, उसका चेक बन रहा है। मार्केट श्रिंक होते रहेगी, आपका बिजनेस श्रिंक होते रहेगा, राइट। लोग इतना लंबा का इतना कॉमन चीज़ नहीं सोचते। पीपल आर ओनली थिंग, अच्छा अब यूके में बच्चा जा रहा है, यूके में भेजो, अब कनाडा में जा रहा है, कनाडा में भेजो, अब ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भेजो, आजकल जर्मनी, आई डोंट नो व्हाई, राइट। Either people are very short-lived, or probably, people are thinking very short-term, and because as an education partner, agent, it's a very great lifestyle business. 2-4-5 करोड़ कमा रहे हो, 100-150 स्टूडेंट भेज रहे हो, यार बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, छुट्टी बनाने को मिलती है, बाहर जाने को मिलता है, ठीक है ना, राइट। या फिर नाउ इन लास्ट 10 years दिस मार्केट इवॉल्व सो मच, जहाँ पे खूब पैसा आया, खूब बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, कुछ ख़त्म भी हुई, कुछ होने वाली है, राइट। बट कुछ पार्टनर्स है जो 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से, या फिर पिछले 5 साल से बना रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म बना रहे हैं। आप पंजाब चले जाओ, जलंधर, लुधियाना, विल फाइंड दीज काइंड ऑफ प्लेयर। मे बी डिजिटल नहीं है, हाँ काम करता हूँ, राइट, हाँ वो डिजिटल नहीं है, बट दे आर ब्रिक एंड मोर्टर। 35 ईयर से जलंधर में देयर इज अ पार्टनर जिसने पता नहीं मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स या लोगों को भेजा है बाहर, एंड दे नो, मतलब उनका नाम चलता है, उनके कंपनी का कोई नाम नहीं, उस पर्सन का नाम चलता है वहाँ पे। स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को पूछने की जरूरत है कि XYG इज स्टिल रेलिवेंट, XYG इज स्टिल अपग्रेडिंग देमसेल्फ, XYG counselors are getting the right exposure, right training, because उनके लिए एक और बच्चा हो सकता है, but आपके लिए it's make it break it. Right. So what I say as an ecosystem player, not all education partners are bad. In fact, there are 99% good actors, and there are 1-2% bad actors in the industry. To students and parents, I don't say that trust everyone, not even university level, not even me. I'm not a career counselor, I'm not a certified career counselor, right? But ठीक है, 15 साल से कर रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स है, वेस्ट इंटरेस्ट कम है, मुझे तो है कि ये बहुत गंदी एग्जांपल दे सकता हूँ, गोली बिकेगी तो बंदूक गोलियाँ चाहिए होगी, तो मैं बंदूक नहीं बेच रहा। आपने सजेस्ट करा आप कहाँ जाना है, उसका आपका अकोमोडेशन चाहिए। सो हैंस मैं ये अप्रोच है मेरी कि यार आप जिस भी कंट्री में जाओगे, जिस भी सिटी में जाओगे, we'll help you with accommodation and value added service like post admission, right? So I will not tell you कि आपको जर्मनी जाना है कि आपको आइलैंड जाना है, right? And then वो जो आप एक प्ले बुक मांग रहे थे कि एक एक्सेल दे दो कि यार तो उसको बनाने को खुद भी बना सकते हो आप, राइट। आपको एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स यू नीड टू सिट टुगेदर, एंड जितना जल्दी, ये मेरे लिए मैं ये बता सकता हूँ सबको, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। इफ़ यू आर इन 8th standard, your chances of saving tons of money and getting the best university or a very good university and course will be higher. Also, आप जब 6th, 7th, 8th में आते हो तो स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग शुरू होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का काम खाली ये है कि पैसे लगा दो या फिर लोन लेके दे दो, राइट। सो अभी आई एम वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लोबल मोबिलिटी पार्ट 3 और 3O, वेयर इन इमिग्रेशन एंड एजुकेशन आर 2 different things, राइट। जब हम एजुकेशन को इमिग्रेशन से मर्ज करते हैं ना, तो दिक्कतें होती हैं। जब एक एजुकेशन पार्टनर हैदराबाद में या कोची में या पंजाब में या यूपी में ये बोलता है कि भैया बाहर चले जाओ, आपकी लाइफ झंझनारा हो जाएगी, राइट। बहुतों की हुई है, बट 50 लाख लगा के 1 करोड़ लगा के अगले साल नहीं हो गई, 10 साल 15 साल में हुई, 5 से 7 साल में हुई। वेयर दे स्टडी, वॉट दे स्टडी, हाउ दे स्टडी, दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टू एजुकेशन, बेस्ट। बट इट्स नॉट ROI जो आपको 1 साल मिल जाएगा, 2 साल मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म, 5 से 7 साल, 10 साल, एंड दैट टू पीपल से क्या लकी होना पड़ता है, लकी नहीं होना पड़ता। मैं 2005 में जो पढ़ रहा हूँ, मुझे वो नहीं पढ़ना जो अभी साइबर सिक्योरिटी चलना है, मुझे वो पढ़ना है कि 2030 में इंडस्ट्री में क्या चाहिए होगा और किस प्रोफेशन या किस करियर, किस कंट्री में क्या नीड होगी, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, राइट। I mean, now I can say यार why people don't make money and why people fail, क्योंकि मैं आज का सोच रहा हूँ, मैं कल का सोच रहा हूँ, मैं 3 महीने का सोच रहा हूँ। अब मैं ज्ञान दे सकता हूँ क्योंकि आई हैव रीच अ लेवल जहाँ पे मुझे एटलीस्ट पैसों के लिए नहीं कामना या अगले 1 साल में क्या नहीं कामना, दैट्स व्हाई आई कैन थिंक लॉन्ग टर्म। बट इफ समवन कैन बिल्ड देयर करियर, अगर आज मैं 20 साल बाद कोई मुझे बोलता, एंड आई वाज टेलिंग टू हर्षित, या कोई मुझे 20 साल बाद बोलता कि कैसे बिल्डअप करना है, तो देन व्हेन आई वुड हैव बीन एट 20, आई वुड हैव फर्स्ट आइदर मैं विद बनाता कि यार मुझे पॉडकास्टिंग भी ट्राई करनी है, मुझे क्रिकेट भी ट्राई करना है, मुझे
कॉमर्स भी ट्राई करनी है, और हो सकता है अगर मैं और भी पीछे चले जाऊँ कि मैं साइंस भी लेता, यू नो, एंड मेरे ऑप्शन खुलते चले जाते, एंड देन आई कैन डिसाइड कि मुझे करने में मज़ा क्या आता है, मेरे लिए नेचुरल क्या अच्छा है. जैसे अब मैं बोलना मेरे नेचुरल हो गया, आज भी मैं आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन द क्रिकेट ग्राउंड, यू नो. I sales and business development is natural to me, you know. But then that I realized over 20 years. Right. Probably if I would have explored lots of things, you know, probably मैं 30 साल में डिसाइड कर पाता, you know, कि यार मेरी ना स्ट्रेंथ बिजनेस डेवलपमेंट है या मेरी ना स्ट्रेंथ सेल्स है. बट वो भी ना, इनफैक्ट वी आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रेंथ मास्टर स्ट्रेंथ, जहाँ पे लोग ना साइकोमेट्रिक टेस्ट ये सब करते हैं, विच इज फ्लॉड एंड यू नो पुराना कॉन्सेप्ट, आउटडेटेड हो गया. कॉर्पोरेट्स में भी आ गया अब तो साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर एन इंटरव्यू. राइट. सो वी आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मास्टर स्ट्रेंथ, यू नो, जहाँ पे आई डिडंट नो व्हाट माय स्ट्रेंथ इज, but now I know what my strength is, you know. But I took 20 years to realize that. But when a student at 8 or 6, if they know what are your strengths, natural strengths are, you know, which can be, you know, learned through Gallup and through few concepts, then I can decide कि मुझे writing लिखना अच्छी है, I can be a good writer. And then I realized कि अच्छा, if I want to be a good writer, should I study in India, where we have few great, you know, liberal arts universities, but few, you know. And अगर मुझे वहाँ नहीं मिला तो मुझे अब यूके जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए. और my parents have enough money or resources to send me there. If not, then can I work so hard at the right time and then aim to get a scholarships, you know. Or there are courses like, or there are assessment tests like SATs and Right. GREs and, you know, ACTs, Right. जहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए या फिर मुझे एक्सेस मिल जाए, you know, and then financing can be arranged. So it's not a one, you know, straightforward कि यार फला का शर्मा जी का बेटा यूके गया था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई तो अब यूके चले जाओ. फला का ऑस्ट्रेलिया गया था, उसकी तो लाइफ अच्छी नहीं, वापस आ गया तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते. राइट. सो यू नीड टू डिसाइड कि यार आपका एम क्या है, आपका 5, 10, 15 साल आपको कैसी लाइफ जीनी है, आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है, यू नो. आपके पेरेंट्स को आपको क्या सोच रहे हैं कि बेटा तुझे जहाँ पढ़ना जो पढ़ना पढ़ लियो, या फिर यार अभी तेरे में इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, तू जा अच्छा कर और हमें बुला ले, यू नो. एंड नथिंग रॉन्ग, बट यू नीड टू बी अवेयर आप कर क्यों रहे हो, वर्सेस कि आप चले जाओ. अब आते हो दूसरी क्लास में जहाँ पे लोगों का पैसा बहुत है, यू नो, एंड देयर आर ऑप्टिक्स, देयर आर सिग्नल वैल्यू, राइट. कि यार और मुझे बोलना ठीक है, यू नो, देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया who send their daughters and their sons to go abroad because उन्हें पता है वापस आएगा तो मेरी डाउरी कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, साउथ में या फिर साउथ, कैलकाटा, हर जगह यार, पंजाब, यू नो. आई नो सो मेनी एंड वेरी एजुकेटेड प्रोग्रेसिव, एंड कोई गलत नहीं है. दिस इज हाउ इट ऑपरेटिंग, राइट. देयर इज इन्वेस्टमेंट, राइट. बट पीपल शुड, सो सबको ना अपना गेम, मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ, सबको अपना गेम पता है, बट आई एम जस्ट मेकिंग देम रियलाइज एंड मेकिंग रिमेंबर कि आपको पर्पस पता होना चाहिए, आप क्यों भेज रहे हो, यू नो. बाहर जाना सक्सेसफुल है बहुतों के लिए. आई नेवर थॉट दैट आई विल बी यू नो सो मेनी एस्पेक्ट विच आर क्रिएटेड, राइट. बट जो भी बाहर गया सबने थोड़ी अच्छा किया है, राइट. इनफैक्ट आप स्टैट्स देखोगे तो नॉर्मली लोगों को वहाँ जॉब नहीं मिलती, वापस आते हैं एंड देन क्वेश्चन करते हैं कि मैं यूके क्यों गया था, ऑस्ट्रेलिया क्यों गया था, मैं यूएस क्यों गया था, राइट. बट ये चीज़ अभी डिसाइड करनी है, और 5 से 12 साल पहले, ऑलमोस्ट 5 से 12 साल ऑफ योर लाइफ आप डिसाइड, जितना जल्दी डिसाइड करो, डिस्कस करो, उतना बेटर है. जितना ज़्यादा एक्सपोजर करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, बातें करोगे, उतना बेटर है. एंड देन यू कैन टेक योर चांस ऑफ टेकिंग मोर राइट डिसीजन टू हायर. राइट. अभी यू हैव टच्ड 2 very important words, right? Immigration and education. There will be lot of countries जहाँ पे immigration बहुत easy होगा and vice versa tough होगा, लेकिन that is nowhere correlated with their education quality or a kind of a student that will come out after 5 years or 3 years studying there. So as a parent or as a student, हर किसी के बजट्स अलग है, हर किसी के फाइनेंशियल्स अलग है. सब किसी के लिए 50 लाख इज वेरी लेस, किसी के लिए 1 करोड़ इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वाइस वर्सा, राइट. तो ऑन एन एवरेज 50-60 लाख रुपए अगर मैं खर्च कर रहा हूँ 1 साल के लिए और 5 साल के लिए भेज रहा हूँ, 2-3 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा हूँ. सो बहुत सारे लोग देखते हैं लाइक आजकल कनाडा में इमिग्रेशन इश्यूज होने वाले हैं, हो रहे हैं, यूएस में कुछ चल रहा है, तो जर्मनी बहुत ईजी हो गया. अभी 2-3 साल से जर्मनी इज नाउ ओपनिंग डोर्स और बहुत मतलब अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर. मे बी इमिग्रेशन इज ईजी इन जर्मनी, बट बहुत सारे लोगों को वहाँ की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए 4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता होंगे, और ना वो कहीं पे डोमेन में अवेलेबल होंगे कि वैसा अभी तक डेटा आया नहीं, पब्लिश नहीं हुआ. तो
फ्रॉम दैट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं है, 40-50 लाख या 30 लाख 40 लाख पर ईयर वाला मेरी फैमिली है, और जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, दीज आर द न्यू कंट्रीज दैट आर ओपनिंग डोर्स एंड जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे मेरे को जाना है, और बजट भी मेरा 30-40 लाख है, क्योंकि मैक्सिमम जनता पहले अगर 100 में से 10 पेरेंट्स भेजते थे, आज 50 भेजते हैं, मान ये 40 भेजना चाहते हैं, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे अलग बात है। अब मेरा बजट शायद 30-40 लाख की है, और मैं चाहता हूँ एक साल में 30-40 लाख, 30 × 3 1 करोड़ रुपए मैंने जोड़ा था कहीं से, मेरा बच्चा जाए और बहुत स्टार बन के आए, या वहीं पे बस जाए, जो आपने बोला भी। तो कमिंग टू सेम प्ले बुक क्वेश्चन, बता दो। हाँ प्ले बुक नहीं, मतलब कुंजी बता दो, जो कुंजी, लोगों को हाँ वो कुंजी भी 3 कि मिनट 5 मिनट 15 सही मिनट ज्ञान में ना सब मिले, समझ बट आ गलत ना मिल जाए, वहां जाके लॉस फील ना करें। सबको ही 15 मिनट का शॉर्ट चाहिए जिसमें भाई देखो सारी कहानी मिल गई। एक तो ये कॉन्सेप्ट गलत है यार, मैं कौन हूँ कि मुझे सब पता है, मैं तो खुद गलतियाँ करता रहता हूँ, राइट। बट हाँ, गलतियाँ करके कुछ बता सकते हो, यानी प्ले बुक बता देता हूँ, अगर प्ले बुक चलती है तो आज जो है वह, मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपना, तो आई हैव अ 5-year डॉटर, यू नो, फेथ, यू नो, आई वॉज फॉर्चुनेट एंड अगेन स्मार्ट इनफ, ओके, व्हेन शी गॉट बॉर्न, मैंने कहा ठीक है यार, हम अंडर ग्रेड में नहीं पढ़ने गए, नॉट दैट मॉम डैड नहीं भेज सकते, तो प्रॉब्ली नहीं भेज सकते, अंडर ग्रेड में नहीं जा सकता था, यू नो, 1 करोड़ उस समय भी 70-80 लाख रुपए 3 साल के लिए नहीं कर सकते थे खर्च, राइट। बट दैट डजंट मीन ना कि मैं नहीं प्लान कर सकता, राइट। तो सबसे पहले मैंने एक SIP 10,000 15,000 की SIP बनाई, 18 साल, भाई कोई भी मैच कर लो, सही हो ना, 3 से 5 करोड़ रुपए का बन कॉर्पस जाएगा, इजीली 10-12% का ही बन जाएगा, है ना, हाँ। 10 से 12%, 30 से 5 करोड़। बहुत। आज अगर 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं 1 साल के लिए अंडर ग्रेड, 1.5 से 2 साल खर्च हो रहा है, तो मैंने इन्फ्लेशन भी कैप्चर कर ली, यू नो, और मैंने 10-15 हज़ार रुपये निकाले, यू नो, कोई भी निकाल सकता, कोई भी निकाल सकता है। 10-15 हज़ार मैंने SIP करी, और मेरा 18 साल है, तो आई नो, यू नो, कि फेथ मुझे गाली नहीं सुनाएंगी, यू नो, और मैंने भी नहीं सुनाई अपने माँ बाप को, बट एक वो टिच रहता था, राइट। बट मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूँ, एट 18 शी शुड डिसाइड कि उसको अंडरग्रेड करने जाना है, उसे स्टार्टअप करना है, या उसे शादी करनी है। एज अ पेरेंट आई कैन गिव दैट मच ऑफ कॉर्पस, एंड मेरे माँ बाप ने मुझे बेस्ट एजुकेशन दिया, तो लाइक एंड फ्रीडम दिया, जो करना कर, तेरी लाइफ है, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, बाकी तुम्हें ज़्यादा पता है, हमने तो जैसे जैसे करके आपको अच्छा पढ़ा दिया। So, एक तो ये तरीका है। अब मैं हूँ, लेट्स से मैं अपने ब्रदर का वो लेता हूँ, यू नो, एग्जाम्पल। सो माई ब्रदर इज़ लाइक 43 एज, एंड यू नो 10 साल का मेरा नेफ्यू है अव्यान, एंड नाउ वी आर प्लानिंग यार इसको भी तो बाहर भेजना है। अब तो तेरे पास 10 साल रह गए, राइट, तो अब तू करेगा भी तो 10 साल में भी तू सेव भी करेगा, तो 50 लाख, 1 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक हो जाएगा, 2 भी नहीं होगा, 1-1.5 करोड़, राइट। बट अंडरग्रेड तो मतलब दैट मीन्स चांसेस ऑफ हिम सेंडिंग हिज, यू नो, son for undergrad on financial level is comparatively less, right? So अब क्या ऑप्शन होना चाहिए फैमिली का, एक कि चलो अभी रेज हो गया, अव्यान इज 10 or 12 year old, so he has 6 years to build his profile, राइट। आप अपने वो कैब बेटर करो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में बेटर करो, एकेडमिक्स बेटर करो, they are exams like SATs, ACT, due to which, you know, you get credits, you get scholarships, and also you get access to best universities. I didn't know this, you know, because मैं podcast के लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे और पता चल रहा है। तो now they have 2 options. एक, my nephew should start building his profile, राइट। at the same time my brother should start investing, right, and 6 से 8 साल में देन दे कैन रियलाइज या अंडर ग्रेड करने भेजना है कि पोस्ट ग्रेड, एंड उसके साथ साथ भेजने से पहले भी किस कोर्स के लिए भेजना है, वो कोर्स इंडिया में नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट, राइट। अगर वो इंडिया में कोर्स है, वो अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में है, राइट, देन अंडर ग्रेड यहाँ से करा लो, पोस्ट ग्रेड के लिए बाहर भेज दो, क्या पता अंडर ग्रेड के बाद जरूरत ही ना पड़े पोस्ट ग्रेड की। ये किसने बोला कि पोस्ट ग्रेड करना है, MBA करना ही है, राइट। मतलब क्यों 2 साल आपको जॉब करनी, 2 साल का करियर गैप लेना है और 50 लाख रुपये फिर लगाने, और फिर 5 साल और 50 लाख रिकवर करने के लिए काम करना है, राइट। सो कमिंग बैक टू, तो अब ये सेकंड ऑप्शन। अब एक थर्ड ऑप्शन है कि यार मैं अब यू नो मेरे से 40-45 ईयर का मैं फैमिली, यू नो, पेरेंट हूँ, या यू नो, एंड नाउ माई डॉटर और माई सन गॉट, लेट्स से 2 से 5 साल बचे हैं, राइट। तो मैं इतना सेव भी नहीं कर सकता,
नो, और अब वो प्रोफाइल के लिए भी थोड़ा टाइम लेट हो गया है। तो अभी एक और ऑप्शन है, एक तो आप फाइनेंशियल अपने सिबिल वगैरह अच्छा रखो, थोड़ी सेव वेव करो 3-5 साल में भी, एंड देन फाइनेंशियल लोन्स है, एंड वो भी आप CEO, राइट? तो अच्छा। अपनी जेब से क्यों पैसे देना, बैंक देने को तैयार है। 80-90% तक बैंक्स आर फाइनेंसिंग गुड इंटरेस्ट रेट एजुकेशन लोन, एंड कंप्लायंस हो जाता है राइट। एज अ बैंक। मैं तो यही करता हूँ, अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पहले बैंक को बोलता हूँ कि यार भाई एंटाइटलमेंट सब कुछ चेक कर, राइट। Right. बैंक से लोन सैंक्शन करवा लेते, फिर चाहे अपनी जेब से पैसे दें। वो भी है ना, उसमें भी लीगल टेक्निकली उसमें भी यार कैश रखेंगे यार, बैंक में पैसा अच्छा लगता है और पैसा पैसे को बढ़ाता है, राइट? मेनी नोस, बट फिर क्या आ जाता है, जैसे हमें एक बैकग्राउंड से आते हैं कि लोन थोड़ी लेना है, किसी से पैसे लेके थोड़ी करने हैं, किसी से देने नहीं है। अरे यार वी हैव अ बैंक हुज अ बेस्ट फ्रेंड, 8-9% पे दे रहे हैं, तुम्हारा पैसा 14% पे बढ़ रहा है, दिमाग के कमा सकते हो, और 4% का गैप है, हम ये लाइक कि अरे किसी को देना थोड़ी है, राइट? फुल्ली एग्री। है ना, थॉट, ईगो, इमोशंस, राइट? तो then there's another option which I'm mentioning, and we'll go to your point, immigration education. So if we go back and let's talk about global mobility. So global mobility was been there 10,000 years back, and it will be there 10,000 years later. मैं मेरठ से दिल्ली आया, दिल्ली से नॉटिंघम गया, नॉटिंघम के बाद वापस आया, दिमाग खुला, now I travel a lot. Luckily I travel because of my work, because there are conferences, this and that, due to which I get to meet people which probably I never thought. I get to sit in rooms which I never thought, यार उस दिन I was in a room जो कम से कम नहीं तो $600 billion का होगा. People sitting in that room, because they own real estate, 150,000 beds, what not, right? And it's mind-boggling, So where I'm coming in, global mobility पहले था, आगे भी रहेगा. पहले लोग खेतों से पानी के पास आते थे, फिर पंजाब वाला मेरठ वाला दिल्ली आता है, दिल्ली वाला बॉम्बे जाता है, बॉम्बे वाला सिंगापुर जाता है, सिंगापुर वाला US जाता है, अब प्रॉब्लम US वाला मास जाएगा, या फिर US वाला इंडिया आएगा. मुझे लगता है इंडिया वाला अब इट्स इनबाउंड, अब सब इंडिया में आएंगे, एशिया में आएंगे, एंड दिस इज़ द बेस्ट लास्ट आएंगे नेक्स्ट 50 साल. अगर अब नहीं पैसा कमाए, इमेजिन आपको चाइना को पता है कि चाइना अगले 50 साल में ये हुआ था 50 साल में, और इंडिया उसमें लैंडस्केप में आप 50 साल में वो कर सकते हो. I mean, how can you talk about work-life balance and work-life whatever, right? Skill बनाओ, upskill करो. But coming back to your question, so then global mobility through पहले क्या होता था, मिस्टर जवाहर नेहरू, गांधी जी, who else, they realize कि उन्हें जो पढ़ना है वो इंडिया में academics नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ कम है, and they are meritorious and they have strong profiles. They've been invited by best of universities. And then they come back because वहाँ जाकर पढ़े, कल्चर सीखा, और ज़्यादा दिमाग खुला. Then they have contributed to India. Then अरे जो भी गांधी जी, जो नेहरू, जिसको पॉलिटिक्स में बनना है या जिसको इंडस्ट्री बनना है वो बाहर जाओ, बिकॉज इंडिया में कम इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, कम वो थी, जबकि एकेडमिक्स इंडिया की बेस्ट रही है, बट एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, तो देन इंडस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस, जिसके पास हैव है या फिर जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है वो जाने लगे, राइट? फिर अब एक दौर आया जहाँ पे इंडिया में 40 मिलियन स्टूडेंट्स गेट एडुकेटेड और ग्रेजुएटेड एवरी ईयर, और आप भी उनमें से एक थे, राइट? आपने कहा कॉमर्स करूँगा, CA करता हूँ, 40,000 में 1200 में आ जाएंगे, एटलीस्ट एक पास बन जाएगा, राइट? बट सब नहीं कॉमर्स करना, किसी को फिजिक्स के साथ प्रॉब्ली मैथ्स, प्रॉब्ली आर्ट्स बननी है, तो अब जाके थोड़ी इंडिया में लिबरल आर्ट्स वगैरह कॉलेज आए, बट लिमिटेड है. तो अदर डे लंबा क्वेश्चन है दे रहा हूँ, अदर डे वन ऑफ माई नीस और वन ऑफ माई फ्रेंड नीस रीच आउट टू मी कि भैया मुझे ना बाहर पढ़ने जाना है, एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड्स को काफ़ी हेल्प करते रहता हूँ, बिकॉज यार गलत थोड़ी बताना है. तो आई एम लाइक कि क्यों पढ़ने जाना है, अंडर ग्रेड, मैंने कहा अच्छे स्कूल से पढ़ा है, सेंट मेरीज से, मैंने कहा क्यों पढ़ना है, कहते भैया मुझे ना साइकोलॉजी विद दिस करना है. तो मैंने कहा फ्लेम्स, अशोका है ना, क्रिया, कहते वहाँ मेरा हुआ नहीं, वैलिड पॉइंट. मैंने कहा फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कहते भैया US है UK, मैंने US में जाना है, बहुत दूर है, और अंडर ग्रेड के लिए 2 करोड़ क्यों खर्च करने हैं, UK में फिर भी थोड़ा सस्ता है कंपैरेटिवली. तो मैंने कहा देन US से हम UK में आए. हम लाइक वाई UK, ठीक है, पास है, स्ट्रेटजी लोकेशन है, पास है, इंग्लिश, हिंदी, खाना मिल जाता है, थोड़ा मोर इंडियन है, राइट? एंड अंडर ग्रेड प्रॉब्ली, अगर मैं एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इफ़ आई विल सेंड माई डॉटर
I don't know at that time how mature she will be, but I will be comfortable as a parent sending her probably to UK then to US, because US बड़ा है, दूर है, intimating, overwhelming हो जाता है, right? And then probably post grad के लिए US जा सकती है, या फिर इंडिया में अंडर ग्रेड करके फिर पोस्ट ग्रेड के UK या ऑस्ट्रेलिया जा सकती है. तो दिस वे आई एम कमिंग दैट आई आस्क हर कि जाना क्यों है. एंड पेरेंट्स, अब पेरेंट्स अपनी बेटी के सामने नहीं बोलेगा कि यार 2 करोड़ की बातें कर रही है, मेरा बड़ा बेटा भी है, मेरा उसे भी अभी मैं उसे बैंगलोर में अंडर ग्रेड करा रहा हूँ, फिर मुझे MBA भी कराना है, पहले मैंने मेयो में पढ़ाया हुआ है, तो यार मैं ठीक ठाक बिजनेस से आता हूँ, 5-10 करोड़ रुपए शादी वादी है, तो वो तो नहीं बोलेंगे, बट आई सेंस इट. एंड आई मोर देन सेंस इट. मैंने खुद ही क्वेश्चन किया, मैंने कहा बट अंडर ग्रेड क्यों करा के 2 करोड़ खर्च करने हैं? आप अंडर ग्रेड करोगे, आप साइकोलॉजी ऑनर्स करोगे, जो करोगे, आपको लग रहा है कि आप 2 करोड़ खर्च करके आपको 2 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, देन वी ओनली से कि नहीं तो इन्वेस्टमेंट है, तो एजुकेशन है, तो लाइफ के लिए. बट स्टिल फिर आप 5-6 लाख की जॉब वहाँ मिलेगी नहीं, और अच्छे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन कि हाउ टू क्रैक अ जॉब इन UK और इन US. The next stage, next step. We'll discuss about employability, right? Or hacks about employability. But most likely, average की बात करो तो 10 में से 8 लोग वापस आते हैं. वो अपने माइंड में बना के आते हैं, हमने पोस्ट ग्रेड नहीं किया था ना, जॉब तो पोस्ट ग्रेजुएट को मिल रही है, राइट? एंड सही बात है, मैं अंडर ग्रेड को 40 लाख रुपए क्यों जॉब दूंगा? या तो मुझे वहाँ के लोकल बंदा मिल रहा है, या फिर मुझे एक्सपीरियंस बंदा मिल रहा है, राइट? देन दे विल कम बैक कि पापा मुझे MBA कराओ, अनदर फिर 50-1 करोड़ 2 करोड़ आप फिर खर्च करो, राइट? उससे बेटर ये है कि यार आप अंडर ग्रेड, अगर आपके फाइनेंशियली आपको लगता है तो आप अंडर ग्रेड इंडिया में कर लो, या प्रॉब्ली न्यूजीलैंड या मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, अगर बाहर भेजना है. दुबई इज अमेजिंग. यू टॉक अबाउट दुबई इज अ पूरा सेगमेंट है, राइट? व्यूज में मिलते हैं आज का व्यू में. दुबई की बात करेंगे तो अंडर ग्रेड या तो इंडिया से करो या आस-पास से करो, एंड आपका बच्चा भी मैच्योर हो जाता है, आपको और टाइम मिल जाता है सेव करने का और डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करने का. देन पोस्ट ग्रेड करना है, नहीं करना, US से करना है, UK से करना है, दैट्स अनदर डिस्कशन, राइट? सो कमिंग बैक ग्लोबल मोबिलिटी. सो अब जो फेज़ है, एटलीस्ट जो मैं अपने लिए प्लान कर रहा हूँ, राइट? आई हैव गॉट माई गोल्डन वीज़ा इन दुबई, एंड इवेंचुअली आई नो आई एम अ ग्लोबल सिटीजन, राइट? अब फेथ को मैंने, और साथ में मैं एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करके एक कॉर्पस बना रहा हूँ, राइट? जहाँ पे उसके ऊपर डिसाइड है. अब उसे दुबई अंडर ग्रेड, अब मेरा जो थीसिस ये है कि यार मैं MIT, लेट्स से वो IIT, CA, ये सब, एज ए पेरेंट वी ऑलवेज लुक फॉर अ सेफर ऑप्शन. एब्सोल्युटली. अब उसे MIT में पढ़ना है कि दुबई में पढ़ना है, अब मुझे पता है कि यार दोनों का प्राइस सेम होगा, एटलीस्ट एक्सपोजर दुबई में ज़्यादा मिलेगा. मेरा ये थीसिस है. इट विल बी मोर सेफ, इट्स एसेसिबल, राइट? एंड प्रॉब्ली वी माइट ऑल्सो मूव देयर, सो दिस इज माई प्लानिंग. सिमिलरली हर फैमिली को, हर स्टूडेंट को समझने की ज़रूरत है कि what they are looking out of their life, what kind of financial resources they have, and ये स्टूडेंट्स के लिए करियर लॉन्चर जा रहा हूँ ना, ये 3-6 महीने लगेंगे, मेरा होना नहीं है. 1 साल बाद मैं कुछ भी बोल लूँगा, मेरा होना है. उस समय आई वॉज नॉट एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो क्यूरियस नहीं था, हार्ड वर्किंग भी प्रॉब्लम कम था, राइट? सो आई डिड वन गुड थिंग, दैट कि यार इससे अच्छा है एक MBA में, जहाँ पे मुझे पता फैकल्टी महंगा है. आई डिड फॉर इन्फिनिटी बिजनेस स्कूल, तो बंद हो गया, लिमिटेड एडिशन था, बट D स्कूल, FMS, सारी फैकल्टी 4 स्कूल वहाँ से थी. तो आई गॉट अ गुड एक्सपोजर, आई पेड मोर, बट देन आई गॉट अ गुड एक्सपोजर, आई गॉट माई ग्रूमिंग देन, एंड देन आई गेस दैट्स वाज ऑल्सो वन रीजन, लाइक आई जस्ट शिफ्टेड, मेरा ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई, राइट? सो कमिंग बैक, सो ग्लोबल मोबिलिटी एजुकेशन के थ्रू आपको समझना है कि एजुकेशन के थ्रू अगर आप बाहर भेज रहे हो, राइट, तो आप पढ़ने के लिए भेज रहे हो, आप स्किल्स डेवलप करने के लिए भेज रहे हो. इंडिया में तो फिर भी यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप मेरे यहाँ पढ़ो, प्लेसमेंट में आपको इतने की मिलेगी. कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कहीं पे भी एम्प्लॉयबिलिटी के बेसिस में आपको नहीं बुलाते कि आप हमारे पास आओगे. इवन MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, या हमारे यहाँ पढ़ोगे तो आपको फलां का जॉब लगेगी. कोई नहीं बोलता, कैंपस नाम की खाली चीज़ इंडिया ही में नहीं होता है. अब दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आर स्टडिंग दिस बिजनेस मॉडल कि आप प्लेसमेंट, क्योंकि मैं 2 करोड़ रुपये खर्च कर रहा हूँ और मेरे को यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप तो स्केल करने आए, स्केल करने आए, जॉब अपने आप कोई लगेगी. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा रहा है, ROI नहीं बता रहा, डालते जाओ. आप इंडिया में तो यही हो रहा है ना. हाईवे पे आप चलते हो, आप दिल्ली, देहरादून, अब मेरठ जा रहे हो, आपको दिखता है गूगल 48 लाख. अब आपने नाम नहीं सुना था उस यूनिवर्सिटी का, लेकिन आपको लगा हाँ ये यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरा,
48 लाख का पैकेज लगा, अब कैसे लगा है, कितने साल बाद लगा है, क्या वो पढ़ाई एक अलग और discussion करिए, है, हाँ you वो know, एक अलग वो डिस्कशन। CTC कैसे बनता है, इसमें बट views भी आते हैं, वो you माइंड know, ब्रांड बिल्डिंग तो हो गई हाँ, ना। वो व्यूज भी अलग आते हैं कि 50 लाख का CTC एक्चुअली में कितना आता है, वो एक Actually अलग में कितना डिस्कशन तो वही तंजानिया वाला सीटीसी हो जाएगा। है। राइट, सो यू नो, तो स्टूडेंट शुड बी, फैमिली स्टूडेंट शुड बी अवेयर why someone is going for education, एंड एजुकेशन में ना तो आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस बोल रही है कि आप मेरे यहाँ पढ़ने आओगे हम आपको जॉब दिलवाएंगे, और ना वो बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ रहे हो, पैसे लगा रहे हो, आपको हम सिटीजनशिप देंगे। कोई गारंटी करके बुलाता नहीं है कि भाई आप आओगे तो आपको मिलेगी मिलेगी। येस, दे आर वेज, दे आर पार्ट्स, एंड दे आर पीपल हु हैव गॉन, they have done well for themselves, they have been law abide citizen, they've been creating value in the economy, they are upskilling, they are working hard, and then there are many who have over 5, 10, 15 years got citizenship, great jobs. Now they've been running, you know, Fortune 500 universities also, organizations and companies also. So there is a merit, you know, but then you need to be aware of this. ऐसे नहीं है कि flow, अब तो मैं 40 साल में आके बोल सकता हूँ, मैंने भी पिछले 20 साल अब फ्लो में ही जिया हूँ मैं। आई लाइक टू फ्लो। अनुगच्छता प्रवाह एक वर्ड है, गो विद द फ्लो। होती रहती है चीजें, फिर वो फिलॉसफी बन जाती है, जो शाहरुख खान बोलता है, चीजें हम नेचुरली करते चले गए, आज वो सक्सेसफुल है तो वो फिलॉसफी बन गई। इसलिए मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, यू नो, थोड़े थोड़े मेरे पैटर्न्स है कि हाँ भी, यू नो, बट एंड आई बिलीव मेरे नो, अच्छा एक मेरी स्ट्रेंथ है, यू नो, आई एम वेरी सेल्फ अवेयर। अगर मैं रूम में बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे से कौन स्मार्टर है, कौन नहीं है, कहाँ मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, कहाँ मुझे ज्ञान बांटना है, कहाँ सुनना है। ये एक मेरी ये स्ट्रेंथ है कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आधे लोग हम इसी में रह जाते हैं कि यार, यू नो, मैं पॉडकास्टर हूँ ना, तो अब मैं तो अपने राजशमानी से भी, रणवीर से भी, जो रोगन से भी कंपेयर करूँगा, बट मैं अगर मैं बोलूँ कि यार वो तो बॉम्बे रहता है, वो तो इस फर्टिलिटी है, वो तो बुलशिट है। They worked hard, they are good at it, you know, either be good at it, be consistent at it, and then compare and expect that kind of, you know, trajectory, or keep building it. And consistency, flow, intent, probably that's what works for me, might not work for other, right? So self aware होना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट पता करना बहुत जरूरी है कि अगर माँ बाप कह रहे हैं कि यार तेरे ऊपर 50 लाख लगाएंगे, 2 करोड़ लगाएंगे, बट जैसे मेरी, and I respect my mother for that. So when, you know, I did my undergrad, you know, so भैया को भी मेरे को दोनों को ऑप्शन मिला था कि यार MBA उसको ही करवाएंगे जो दुकान में नहीं बैठेगा, यू नो। तो भैया रियलाइज़ कि मैं तो दुकान में बैठना चाहता हूँ, उसने MBA नहीं किया, एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे दुकान में नहीं बैठना, और एक दुकान में 3 लोग बैठेंगे तो क्या ही करेंगे। आई डिड माई मास्टर्स, एंड ड्यू टू विच जब मैंने मास्टर्स किया, यू नो, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस वट एवर, एंड देन आई वॉज वेरी क्लियर कि यार पापा ने, मम्मी ने 10 लाख 15 लाख लगाए हैं, लोन भी नहीं लिया, तो जॉब करनी है। मैं करना भी चाहता भी था और करनी भी थी, राइट, एंड हेंस, यू नो, ब्यूटीफुली अवेयरनेस एंड बड़ा क्लियर बाइफर्केशन किया, जो MBA करेगा वो दुकान में बैठेगा, जो MBA कराएगा वो अपने आप से बनाए, हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फैमिली में टेबल में होना बहुत ज़रूरी है। फिर एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, मैं बोलूँ कि यार मेरी बेटी, उसके सामने कैसे बोल दूँ यार 2 करोड़ रुपये मैं नहीं खर्च कर सकता? नहीं, बिल्कुल बोलने की ज़रूरत है, इन्हें बाद में फंसोगे, लोन दिलवा दोगे या शादी नहीं करवाओगे, या और बेटी कहेगी कि यार, यू नो, पापा कहेगी बेटी, यू नो, देन, यू नो, कैश फ्लो रनवे तो पता ही होना चाहिए ना, बिजनेस में भी पता रहता है, पता सबको होता है, बात नहीं करते लोग, हाँ, है ना। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सो the next 3, 5, 10 years for mobility is structured immigration. Germany is inviting people because they are aging. They need nurses, they need healthcare, they need services industry people to come and, you know, work for them out there. It's win-win. Nurses are going there, they're learning German, learning another language. इंडिया में 80 घंटे काम करते हो, वहाँ 40, 45, 50 घंटे काम करते हो, आपकी पे बेटर होती है, आपकी लाइफ कंडीशन बेटर है। जर्मनी को दे नीड पीपल, सो इट्स विन विन। बट अगर जो बच्चा पढ़ाई करके और फिर इस रूट पे जाना चाह रहा है, गॉड सेव देम, राइट। एजेंट बताएगा नहीं, मुझे पता नहीं, स्टूडेंट को पूछना बहुत जरूरी है, राइट। अब गलतियाँ क्या होती हैं, अब सब जर्मनी जा रहे, सब जर्मनी भागेंगे, 3 साल में उनके कोटा पूरा हो जाएगा, यू नो। कनाडा में क्या हुआ, राइट। सो रेदर देन कि कनाडा जाना है, जर्मनी जाना है, दुबई जाना है कि न्यूजीलैंड जाना है, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, आप 5-10 साल में अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हो, आपकी एस्पिरेशन
एंड उनकी पॉलिसीज एक्सपेक्टेशन मैच हो रही है, चूज दैट कंट्री, दैट कोर्स, दैट करियर अकॉर्डिंगली, नॉट द अदर वे अराउंड। सब जा रहे हो तो अब हम भी जा रहे हैं। राइट, वो अवेयरनेस एक राइट पॉइंट इन टाइम पे राइट सोर्सेज के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई हैव टू समराइज इट कि एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, आई शुड, इफ आई डू नॉट नो, आई हैव टू रिसर्च अ लॉट and research from good sources. Information can be good or bad at some time, right? And maybe correct or incorrect. मैं तो एक और बहुत- दूँ, दोनों रिसर्च करो, फॉर एंड अगेंस्ट। एल्गोरिथम को कंफ्यूज करो ना यार, मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मुझे गाड़ी की अच्छी चीज़ें आती रहेगी, हाँ। और मुझे वो गाड़ी नहीं खरीदनी तो मुझे बुरी चीज़ें आती Negative रहेगी, क्योंकि एल्गोरिथम आपको फीड कर रहा है। दोनों करना भाई, right, टू एंड फ्रो। डिबेट स्कूल में सिखाते थे ना कि टू एंड फ्रो, right. राइट? सो व्हेन यू आर कंफ्यूजिंग एल्गोरिथम, आपको दोनों की चीज़ें पता चल रही है, एंड इट हेल्पिंग यू टेक अ मोर इन्फॉर्म कंपैरेटिवली राइट डिसीजन देन एनी डिसीजन। Correct. बैक टू यू, यू नहीं, समराइजिंग, सॉरी नहीं, इसी थीसिस पे आ रहा था कि बहुत सारा रिसर्च नहीं, बट सही सोर्स से सही रिसर्च और सही टाइम पे। अब मैं 12th के बोर्ड उसने दे दिए तब सोचूं, तो फिर सोच ही रहा हूँ, फिर तो 2 साल तो लॉस मैंने करने ही करने। एंड वेदर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 8, 9, 10th, 11, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं बट पेरेंट्स आर अल्ट्रा स्मार्ट। सो व्हेन यू स्टार्टेड पॉडकास्ट ना, आफ्टर दैट आपको लगा मेरे जो बिजनेस नॉलेज, बिजनेस करके तो बहुत सारा आया था, यू हैव डन सो मेनी एपिसोड्स नाउ, है, एंड फॉर डिफरेंट नीशेस, डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट पीपल, फ्रॉम संजीव बिखचंदानी टू मेनी अदर पीपल एज वेल, फ्रॉम यू हैव लर्न एंड यू हैव टॉट देम लॉट। इससे व्हाट इम्पैक्ट इज ऑन योर बिजनेस एंड डे टू डे थिंकिंग प्रोसेस एज वेल? क्योंकि मैं अपना ऑनेस्टली छोटा सा बता, 5-6 लोगों से ऐसे टाइप के कॉन्वर्सेशन करें, बट वैसे तो हम बहुत बातें करते हैं, बट इसमें क्या होता है, यू आर कॉन्शियस एंड यू आर ऑल्सो वेरी थिंकिंग आउट लाउड एज वेल कि यार क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। तो दिस मेक्स यू मोर शार्पर इन योर डे टू डे लाइफ एंड हाउ इट हेल्प्स इन योर बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज वेल। बोथ वेज यार, मोर देन दैट इनडायरेक्टली। तो एज अ फाउंडर हमें लगता है हमें सब आ गया, या फिर हम इतने बिजी होते हैं डे टू डे में कि हम अपस्किल अपग्रेड होने में लाइक गलतियाँ करके होते हैं। आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड वे, एंड इट्स नॉट ईजी। आई गेस, मुझे नहीं पता मेरी टीम ने कितना चेज करवाया आपको, मेरे तो सारे गेस्ट बहुत टाइम लगाते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर सो बिग। मैंने कभी नहीं सोचा यार, संजीव सर, दीपकारा सर, अभी मिस्टर प्रशांत, आई एम डिलाइट यार। मुझे प्रशांत से मिला था, मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी है, और ये मतलब 4 घंटे हुआ था मेरे पॉडकास्ट के साथ, दो पार्ट आए, राइट? अब लाइक यार ये तो मुझे, मेरे लिए MBA पार्ट 3 हो रहा है, राइट? और ऐसे लोगों के साथ होना जो मतलब सो मच टू लर्न। बट अब क्या हो रहा है, सभी पॉडकास्ट बन रहे हैं, और ऐसी हमसे आगे वालों ने बोला होगा अब तो हर ही पॉडकास्ट बन रहे हैं। इंग्लिश बोलना नहीं आती, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना नहीं आती, कुछ प्रेजेंस नहीं है, सभी पॉडकास्ट कम कर रहे हैं। तो आई तो जोक दैट दे आर मोर पॉडकास्टर देन लिसनर, बट this is my best interest. I am getting to learn with people, which I will never get 1.5 2 hours. Is it easy? Not at all. Logistically, financially, emotionally, mentally, Right. And there will be people who will question you कि ये तो ना, इसे तो फेम चाहिए, right? और चाहिए, मुझे तो अच्छा लगने लगा कैमरा एंड ये सब, but the honestly that learning curve, and then access to the people which I have never thought. Yes. But it is not easy. You need to take time. It's logistic. मैं दिन के 2-2 3 दिन भी कर रहा हूँ, रात को, और बहुत सारे फाउंडर ने ये एक नैरेटिव बना के चल रहे हैं, हम तो महीने में 1 दिन करते हैं जी, हम तो बिल्कुल डावेट नहीं, हम तो फोर्थ फोकस है। बिकॉज मेरे भी इन्वेस्टर मुझे क्वेश्चन किया था, सर अब क्यों कर रहा है, एंड बीच में क्योंकि मैं वो शॉर्ट फॉर्म भी करने लगा था, 2-3 मिनट हो क्या, राइट? तो एक आई हैव अ मेंटर हु कॉल मी कि सौरभ अब तेरे पास हर चीज़ में ज्ञान है। मैंने कहा सचिन थैंक यू। तो मुझे अपने स्पेस का ज्ञान है। एज अ इफ़ यू आस्क मी एज अ फाउंडर, मेरी जर्नी, मतलब जो मेरी लर्निंग है आई विल शेयर, राइट रॉन्ग आई डोंट नो, एंटरप्रेन्योरशिप, फंड रेजिंग, ग्लोबल मोबिलिटी, education, higher education, right? AI in education, so whatever I've been doing, I can share my journey. किसी के लिए अच्छा है, किसी को अगर बेनिफिट होता है, indirectly whatever I work, nothing go wasted, बहुत लोग, मेरे पे आया तो मैंने कहा यार अभी तो मनीष ने स्टार्ट ही किया है, अभी तो फॉलोअर्स भी नहीं है, व्यूज भी नहीं है, राइट? क्यों मैं आया यहाँ पे, राइट? बट देन आई क्विक रियलाइज, अगर ऐसे संजीव सर सोचते, ऐसे प्रशांत सोचते, देन आई लाइक एकदम से मैं हम्बल हुआ, टू बी ऑनेस्ट, एंड देन आई लाइक क्या देख, अगर क्वेश्चन अच्छे हो गए, मज़ा आ रहा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैंने एक स्टूडियो देख लिया,
you know, कुछ नई चीज़ सीख ली, right? So this is our flow, but indirectly, directly, Right. it's beneficial. Only if you're consistent. So I've done 80 plus, right? I'm enjoying it, genuinely enjoying it, right? I am getting better. I'm मेरी focus, listening मेरी ना listening power थोड़ी मेरी strong नहीं है. I'm aware of this. So podcast is also making me a better listener. So these are the benefit directly and indirectly for me, my business and ecosystem as a whole. ग्रेट, थैंक यू सो मच सर. इतना सारा ज्ञान इस चीज़ में, मतलब वी हैव नॉट रिसर्च ना इतना, मतलब ऑन स्टूडेंट लिविंग फॉरेन, बट 20 ईयर डाउन द लाइन मे बी अभी से बहुत सारा ज्ञान मिल गया, राइट? माई सन इज़ 4 नाउ, राइट? सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो. थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन. और एक ये आपकी इस पे ना, देर इज ऑलवेज अ 0 बिफोर अ 1, है ना? तो यही है, मतलब यू हैव डन 80, देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल बी एट 400 एपिसोड्स. तो वहाँ पे जब 80 वाला भी अजीब सा लगे यार, उस समय हम क्या करते थे. मेरे को आज पहला वाला बहुत अजीब सा लगता है, शायद मेरे को अपने 80 पे 5th वाला बहुत लगे यार, क्या पूछ रहे थे. बट इट्स अ लर्निंग, This is a journey. हाँ. जो ये में नहीं सीखा, या जो ऑफिस काम करते हुए नहीं सीख रहे हो आप, अपना जूम बनाते हो, दैट यू आर लर्निंग इट हेयर. एंड दैट्स अ डायरेक्ट रिलेशन, जो हम कम्युनिटी पे बात कर रहे थे. We have to talk on that segment as well. Sure. But definitely next time soon we'll talk on that, Sure. like the power of community and networking and the personal branding. Not personal, but the brand. Why build. Your personal? brand gets Personal sorry, branding. the brand Personal building branding, why is not? happening. You know, gone are the days जब अमिताभ बच्चन चाहिए थे promote करने के लिए. If you can be good, we have seen Shark Tank, we have seen many. Yeah. That's a personal branding for real. Now Raj Shamani is a brand ambassador for that mobile phone. Na? Personal branding real, distribution real. You know, a network is your net worth. Yes. You know, but people figure this out. But as always, you know, पता होना, करना, और consistently करना, और बार बार करना, यही difference है बस. So with this, thank you so much. Thank you, bhai. Thank you, everyone. Thank you, Manish. Thank you.